yourself a personal time and reflect on your thoughts कि मुझे ये जो गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा किन चीजों के वजह से आ रहा है, उनके सोर्सेस क्या है. गुस्सा आता है मतलब वो इफेक्ट है, उसका कॉज क्या है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा. उस कारण के उस कारण को ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपको आपके माइंड को चैलेंज करना पड़ेगा कि ये कारण जो है, ये कारण को मैं अलाउ करूं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए, या इस कारण को मैं वहीं पे छोड़ दूं. गुस्सा मेरे लिए ठीक है, ठीक होगा, या फिर गुस्से को छोड़ना ठीक है. तो यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट प्रोसेस. आपके जो विचार है उन विचारों को ऑब्जर्व करो, और जो कॉजेस है, कॉजेस कारण कारण की तरफ ध्यान दो और उनका एनालिसिस करो. एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि there is no use, it's useless to express your anger. You can choose not to get angry and aggressive, and you have an option. You can choose to remain calm and peaceful. Thank you, sir. Yeah. I'm satisfied. Thank I'm you. almost on the analysis part. Yeah. Hope so it will help me. Yeah. Thank you, sir. Ashish sir, I have a question. Ashish sir, Yes, sir. can Yes, I? sir. Yeah, yeah. Sir, first of all, thank you very much for enlightening us on this very special day, that is Teachers' Day. Thank you. So, being a teacher, I'm proud of that. It's a noble profession, holy mission. Obviously, sir. Right, sir. Sir, my question is that being a teacher, we should have patience, and patience is a virtue. As you said that patience is a key to success. That everybody knows, sir. Huh? I'm going to be a bit practical as far as this word is concerned. Will you please elaborate this word? Because we are not saint or sadhus. We are teachers. We have some limitations. Patience has its own limit, right? So, how to have patience whenever situation goes beyond control? Like as that madam was asking about anger management. Yeah. Being a teacher, these virtues we must follow in our life, right? So, will you, sir, please elaborate it about that word, patience? Sir, again, same thing. See, sometimes the problem is we try to understand the superficial meaning. Okay. Right. Now, my request to you is, in what context? Because patience is a spectrum. Okay, if your son, for example, if you have a son and he is on mobile since last 2 hours, and you are trying to tell him that beta mobile rakh do, beta mobile rakh do, and he is not listening to you, then what he will do? So Anger. it may Yes, yeah, it leads to anger. This is what, so this is correct. yeah, it may leads to your, it may contribute to your irritation. Irritation. Okay? Yeah. And out of affection, that 2 घंटा मोबाइल देख रहा है, उसके आंखों के ऊपर उसका असर होगा, ब्रेन के ऊपर उसका असर होगा. So out of affection, you are trying to persuade him, correct? Yes, sir. Correct. But then what you will do in that context? So if you can ask me if you can tell me a particular example, real lifetime example, then I can tell you. Otherwise, this is a very vague and general concept. No, this concept is universal, sir. I do agree. We can't be specific. We can't bind in a word or limit. The same thing, sir, which you told me just now, your example of mobile. Because since it is lockdown, so I have also son. He has passed just now 10th standard. So the same problem. So much addicted with mobile and other gadgets. So many times it happens. So what can be done according to you? Yeah. So basically, now it happens with my son also. Okay. Right. And it is happening with everybody. It doesn't matter how the person is expert, whether he is a brain scientist or doctor or brain Gita ka author. Okay. So I told him very clearly about the consequences. First, that if you spend 2 hours of your life, 3 hours of your life on mobile,
इससे क्या होगा, ये गेम खेलने से क्या होता है लाइफ में। सो एटलीस्ट उसका जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि मुझे नहीं खेलना चाहिए, बट बीइंग, देखिए जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, वो नीचे से होता है। उनके रेप्टिलियन और मैमिलियन ब्रेन ज्यादा एक्टिव होते हैं। उनका जो ह्यूमन थिंकिंग वाला ब्रेन होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। सो दैट्स वाई किड्स आर वेरी रिएक्टिव। आप उनसे मोबाइल छीनना चाहोगे, आप बार बार उनको टोकोगे, तो दे विल रिएक्ट लाइक एनिमल्स, ओके, बिकॉज दैट इज एनिमल ब्रेन। ओके, सो नाउ जो मैं करता हूं मैं आपको बताता हूं। एक तो मेक देम अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, गिव देम अ स्पेसिफिक टाइम। हम स्पेसिफिक टाइम नहीं देते उनको, तो मैं स्पेसिफिक टाइम देता हूं कि अगर आप, मेरे बेटे का क्लास होता है 10 to 12 सुबह 2 घंटा, एंड 2 to 4 ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो between 12 to 2 I have planned his calendar and given him 25 minutes of time. So in that period he play whatever he wants. Then after 4, my problem was in lockdown I could not actually uh, took him out in the first initial 3 months. Now the market is open, so now I have uh, made him interested in table tennis. So उसका मैंने क्लास लगा दिया। So 4:30 को मैं उसको क्लास के लिए छोड़ता हूँ, या मेरी मिसेज ड्रॉप करती है, और वो घर आता है 7:30 बजे। नाउ आई हैव एंगेज्ड हिम इनटू दैट स्पोर्ट्स। पहले क्या होता था कि वो 3 घंटा या तो टीवी देखेगा या तो फिर मोबाइल देखेगा। सो आई हैव नाउ ensured that the most of the time he must spend in any sports activity. So table tennis का क्लास लगा दिया। So now with his fixed timetable, अगर उसको इसके हिसाब से मोबाइल मिलता है, गेम खेलने का चांस मिलता है, he is very happy and now he is very self disciplined. So ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं हम लोग सर। Thank you, sir. Okay, Ashish sir, one question on WhatsApp. Sir, please elaborate about how to deal with kids below age of 10 years and above age of 15 years, as both of them are not understanding each other. Okay. How to deal with kids of age 10 and less than 10 and about 15, because both of them are not understanding to each other. Now the context is very important. Now what kind of understanding? See, below 10, the reptilian brain is active. Okay, so below 10 के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई चीज चाहिए होती है तो उनको चाहिए होती है। दे आर नॉट रेडी टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। एंड अबव 15, इमोशनल जो ब्रेन होता है, मैमिलियन ब्रेन, वो ज्यादा एक्टिव होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इमोशंस, उनके इमोशन चेंज उनका जो इमोशंस का स्पेक्ट्रम है, वहां पे इमोशंस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उनके लिए फैमिली लेवल पे पेरेंट्स और सिबलिंग का महत्व कम होता है। एंड दे ट्राई टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। सोशल ब्रेन एक्टिवाइजेशन चालू होता है आफ्टर एज 14 इन द एडोलेसेंट फेज। सो फॉर देम पेरेंट्स से कनेक्शन टूट जाता है, पेरेंट्स को वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। और ये संस्कार का भाग है। संस्कार एक चीज़ है, बट ब्रेन की भी कुछ क्वालिटीज़ है, वो ब्रेन आपको उस क्वालिटी के तरह से ड्राइव करता है। ये जो एडोलेसेंट फेज होता है, ये सोशल फेज होता है, जिसमें फैमिली से ज़्यादा उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स उनके लाइफ में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेरेंट्स से भी और अपने सिबलिंग से भी। तो आई थिंक अवेयरनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। इस वीरेंद्र सर, इस क्वेश्चन में भी कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर दे सिबलिंग्स और who they are, that we need to understand. Okay, thank you, sir.
अजून आहेत का कोणाला काही क्वेश्चन्स तर विचारा. I have one question, sir. Thank you, sir. Nice information. Very energetic. मेरा एक सवाल है कि अगर हमने गीता को अपनाया, डेली हमने 2-3 श्लोक उसको डेली पढ़ने में निकाले, तो हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या? काम, क्वाइटनेस या एंगर कुछ कम होगा या कुछ थिंकिंग पावर अच्छी बढ़ेगी? तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैडम, एक चीज मैं आप सबके लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे जो मैं सीखा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. Yes. फर्स्ट थिंग इज, जितने भी हमारे संत महापुरुष या स्पिरिचुअल गुरुज हो गए हैं और आज भी है, इनको अगर आप गौर से सुने तो एक ही चीज सामने आती है और वो है सेल्फ अवेयरनेस, एंड सेल्फ अवेयरनेस एट द इंडिविजुअल लेवल. Yes. तो जब ये स्पिरिचुअलिटी का अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो एक तो इट रिक्वायर्स अ गुडनेस, इट रिक्वायर्स अ क्यूरियोसिटी, अध्यात्म को समझने की, एक डिवाइन नेचर. सी, स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? आइंस्टाइन वाज नास्तिक, but he admitted in his lifetime that there is a greater power than human being. It exists. हम ह्यूमन बीइंग से भी एक बड़ी पावर है, वो एग्जिस्ट करती है, एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. एंड आज की डेट में हम जो भी देख रहे हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो भी 21st सेंचुरी में हमने क्रिएट किया है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, डुप्लीकेशन ऑफ दैट. Yes. So first thing is the self-awareness. If you teach students the spiritual science, I'm sure that their awareness will be enhanced. और जिसका awareness enhanced होता है, वही व्यक्ति अच्छे हैबिट्स को डेवलप कर सकता है. अपना तो yes. हाँ, जिसको अवेयरनेस ही नहीं है उनको आप कितना भी समझाओ कि आपने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. दैट्स व्हाई तमोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस. तमोगुण में अगर आदमी चला जाए ना तो वो हमेशा इग्नोरेंट रहता है. दे आर नॉट ओपन. आई एम टेलिंग यू, देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल. आना ही नहीं देना है, तमोगुण को अपने शरीर में छिड़काव ही नहीं होने देना है. नहीं, छिड़काव नहीं, वो है आपके बॉडी में है, वो उसको कंट्रोल करना है. यू हैव टू कंट्रोल इट. देखिए, तमोगुण क्यों चाहिए? अगर मैं मेरे बेटे को समझाता हूँ कि बेटा तेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो बोलता है कि 40 स्टूडेंट्स हैं. आउट ऑफ दैट कितने गर्ल्स हैं? 23 गर्ल्स हैं. ओके, नाउ दे आर योर क्लासमेट्स. अगर ऐसी किसी लड़की को किसी ने छेड़ा तो तू क्या करेगा? आई एजुकेट हिम इन दिस एज. So you have to bring forth your tamoguna. Yes, you have to bring forth your tamoguna and protect that classmate, no, that girl. हमारे सोल्जर भी in order to protect as a nation, they have to express, bring forth their tamoguna to fight with the enemies. वहाँ पे मेडिटेशन सात्विक होके मतलब नहीं है मैडम. So Rajoguna, Tamoguna, Sattva-guna, these are the part of our personalities. They are inbuilt in our brains. We cannot remove them. We can only control them. We can learn to control them. And with awareness and understanding, we can slowly build those skills. Yes. Yes, thank you. Thank you. Very nice. Thank you, sir. Thank you. आशीष सर, वन मोर क्वेश्चन एक असा होता की